नाज़रीन, इस दुनिया में तरक्की का रास्ता तालीम है। जिस कौम में तालीम न हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। उनका शुमार हमेशा पिछले तबके में होता है। इस मुल्क में कुछ यही हाल मिल्लत इस्लामिया का है। मुसलमानों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने लोगों के सामने झोली फैलाया, अनथक कोशिश की। किसी हद तक वो अपने मकसद में कामयाब भी हुए, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आज भी हमें नेकनियती से कोशिश करनी है। इस मुल्क और इस रियासत में कई ऐसे लोग और तंजीमें हैं जो इस कोशिश में लगे हैं। इन्हीं लोगों में वार्ड नंबर 54 के काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी भी हैं, जो अपने 6 साला दौर में पहले ही 4 मियारी स्कूल तामीर करवा चुके हैं और आज उन्होंने 5वें स्कूल के तौर पर सर सैयद अहमद ख़ान रोड में 6.5 कट्ठा ज़मीन पर सर सैयद अहमद के नाम से मंसूब 5 मंजिला को एजुकेशन हायर सेकेंडरी इंग्लिश स्कूल की तामीर के लिए उलमाए दीन कारी फजलुर रहमान, कारी शफीक कासमी, मौलाना अल्ताफ़ुर रहमान, शम्स तबरेज़ साहब, मौलाना मुकीम साहब, मोहतरमा जीनत परवीन और दीगर शहरियों के हाथों बुनियाद डलवाई। आइए हम सुनते हैं इस स्कूल के ताल्लुक से अमीरुद्दीन बॉबी क्या कह रहे हैं। একটা আমার কথা বলেছিলেন, এখানে টেনেন্ট ছিল, সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা পরিষ্কার করেছি, টেনেন্টকে পয়সা দিয়ে সরিয়েছি। আজকে এই প্ল্যান স্যাংশন হওয়ার পর আমরা আজকে ফাউন্ডেশন এটা কাজ করার আরম্ভ করলাম। আজকে কারি ফজলুর রহমান সাহেব, মৌলানা শফিক সাহেব, শাম তাবরেজ সাহেব, আলতাফুর রহমান সাহেব, নন পলিটিক্যাল লোককে নিয়ে আজকে এই জায়গা আমরা প্রস্তুত হয়েছি। এডুকেশনের জন্য আমরা কাজ করতে নেমেছি। মমতা ব্যানার্জি একটাই জিনিস বলে, পলিটিক্স তো আছেই, তার পাশে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস রাখতে হবে, মানুষের জন্য কাজ করতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, মানুষের স্বার্থের জন্য কাজ করতে হবে। সেই জন্যে আজকে আমরা এখানে রয়েছি অ্যাজ আ কাউন্সিলর কোঅর্ডিনেটর হিসাবে। আজকে আমি উপস্থিত হয়েছি। আজকে প্রাইমারি সেকশন আমাদের তৈরি হয়েছিল 2 বছর আগে, সেটা ক্লাস 5 পর্যন্ত আছে, ক্লাস 3 পর্যন্ত আমাদের ক্লাস চলছে। প্রায় 500 বাচ্চারাও এখানে এডুকেশন পাচ্ছে কম প্রাইসের মধ্যে। 300 টাকা থেকে ফিস, 400 মধ্যে এন্ড। এবার এইখানে আমরা সেকেন্ডারি আমরা 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে এটা কমপ্লিট করব। বাচ্চারা এখানে আসতে পারবে, যারা ফ্যামিলি এলাকার মানুষ আছেন। এখানে নন মুসলিম বলে কিছু নেই, এখানে সব বাচ্চা, সব জাতীয় ধর্ম নিয়ে বাচ্চা স্কুলে পড়তে পারবে। আর আমি এটাই বলবো, অনুরোধ করব, স্যার সৈয়দ নাম স্কুলে দেখবেন, কিন্তু আপনারা সব এই এডুকেশনের মধ্যে কোনো জাতীয় ধর্ম নিয়ে কোনো ব্যাপার নয়। আমাদের প্রাইমারি সেকশনের মধ্যে অনেকে বাচ্চা আছে যারা কোনো মুসলিম বাদ দিয়ে নন মুসলিমের বাচ্চারাও এখানে পড়তে পারছে, এখানেও তাই হবে। এই জায়গাটা কি গভর্নমেন্টের আছে, প্রাইভেট আছে? এটা প্রাইভেট আছে। কত জায়গা? এটা 6.5 কাঠা জমি। কতলা হবে? G+4 হবে। কোন কোন সেকশন থেকে পড়ানো হবে? মানে কোন বাচ্চাদেরকে একদম লোয়ার ক্লাস থেকে পড়ানো হবে? হ্যাঁ, লোয়ার ক্লাস, নার্সারি থেকে ক্লাস অ্যাফিলিয়েশন আমরা পাবো প্রথমে 8-এ, তারপরে প্রত্যেক বছরে যেভাবে বাড়বে ক্লাস 12 পর্যন্ত। এটা আমরা চেষ্টা করব, গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করব। অলরেডি আমরা পুট আপ করেছি, সে বলেছে আসতে দিয়েছে বিল্ডিং বানাও, তারপরে আমরা অ্যাফিলিয়েশন দিয়ে দেবো নন এডেড। কত খরচা হবে সেটা তো এস্টিমেট করা এখন হয়নি, আগে আরম্ভ করি। উপরওয়ালা ইচ্ছে মতন যেইভাবে সবার হাত মাটিয়ে এই স্কুলটা। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सर सैयद अहमद इंग्लिश मीडियम स्कूल 39/1 सर सैयद अहमद रोड के चौराहे पे एक स्कूल कायम होने जा रहा है, जिसके संगी बुनियाद हम लोगों ने 2020 में रखा था। और उस वक्त 1 नंबर हाथी बागान रोड में जो है 2020 में हमने इब्तिदा किया था, जो क्लास नर्सरी से लेके क्लास 4-3 तक है। मगर इसी पैंडेमिक में 1 फ्लोर हमने और इजाफा किया और क्लास 5 तक वहाँ क्लासेस होंगी। और वहाँ के टीचर यहाँ बैठी हैं, यहाँ आई हुई हैं। मैं उन सब को दरख्वास्त करूँगा कि इस रो पे जो लोग बैठे हैं, पहला छोड़ के दूसरे रो में 20 टीचर हैं, उनको पहले आप थोड़ा जगह दे दीजिए, इसलिए कि बगैर टीचर के स्कूल अधूरा है।
तो मैं उनको इज्जत मिलना चाहिए। और मैं सेक्रेटरी साहब से पहले भी कहा था कि टीचर को थोड़ा सामने बैठाइएगा। जाने दो। आप आज जो स्कूल ओपनिंग होने जा रहा है, खुसूसी मेहमान हमारे यहाँ मौजूद हैं इस मंच पे। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये एक सोच है। तालीम को कैसे, जिस क्राइसिस में हर तरफ महंगाई है, स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए 3,000, 3,500, 2,000 के नीचे कोई स्कूल फीस नहीं है। जो गरीब मिडिल क्लास लोग हैं वो अपने बच्चे को तालीम नहीं दे पा रहे। ये मद्देनजर रखते हुए जब मैं 2010 में काउंसलर बना, उसके बाद हम लोगों ने मुख्तार से, मेरी अय्या जीनत परवीन, वो भी इस ट्रस्टी हैं सर सैयद स्कूल के, उसको रजिस्ट्रेशन कराया 2011 में। ये सोच 2 साल, 1 साल, 3 साल पहले का कबल नहीं है। ये सोच जब मैं 2010 में काउंसलर बना था और 2011 में हुसैन भाई को मैंने जिम्मेदारी दी थी, जो हुसैन भाई आज इस मंच में मौजूद हैं, वो इसको सोच रख रहे हो तो इसको रजिस्ट्रेशन कराओ और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो इसी सोच को रखते हुए मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला हम लोगों को मौका दिया। मैं अल्लाह का, हमारे पूरे टीम ये सोच में लगी रही कि ये सर सैयद अहमद रोड के नाम से ये रास्ता है और वो तालीम के लिए मैं कोई साबित करना नहीं चाहता कि उन्होंने तालीम के लिए क्या खिदमत किए हैं। उनका एक सोच ही अलग था। उन्होंने तालीम के लिए लोगों के सामने भीख मांगी। तो आज ताती बगान, फूल बगान 54 नंबर वार्ड के लोगों ने, आप लोगों ने मौका दिया 2010 में मुझे काउंसलर बनने का। उसके बाद 2015 में फिर से मौका दिया। तो 2015 में मैंने ये ऐलान किया था, मैंने 5 साल पब्लिक के लिए काम किया, रास्ता घाट। ये काउंसलर का फर्ज बनता है। हम लोग ओथ जब लेते हैं जीतने के बाद, तो ये कह के कहते हैं कि जो भी पब्लिक का काम होगा उसको बाखूबी हम लोग निभाएंगे। स्टिल फोटो 2-3। इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ता पानी, रास्ता घाट का काम करना है, कॉर्पोरेशन का डेवलप का काम करना है, उसके बाद भी आप सामाजिक काम कर सकते हैं। स्टिल ले लो 2-3। अब वो सामाजिक काम एजुकेशन से हो खाली नहीं, उसके बाद आप हॉस्पिटल है, यतीम खाना है, स्पोर्ट्स है, हर एक चीज में मुसलमानों को नंबर 1 होना चाहिए। आप देख चुके हैं 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट किस तरह से माइनॉरिटीज को डिप्राइव कर रही है। सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, जो हमारे हिंदू भाई, छोटे जात के भाई हैं, उसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट, उनको डिप्राइव कर रही है। क्या कि हिंदू मुसलमान को बांटा जाए? तालीम में कोई बांटने का सिस्टम नहीं है। ये सर सैयद स्कूल ये बन रहा है तो इसमें हमारे टीचर भी नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम भी है, स्टूडेंट भी नॉन मुस्लिम है। सिर्फ ये, बल्कि ये सर सैयद के नाम से है तो सिर्फ मुसलमान तालीम नहीं पाएंगे। ये इंसानियत के लिए एडुकेटेड होना बहुत जरूरी है, एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। मगर आज की जो हालात है, लगभग 2 साल से तालीम के लिए इतनी महंगाई बढ़ गई है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, कोई डिस्काउंट नहीं, आपको 1 से 5 तारीख तक पैसा जमा कर देना है। इसी सोच को रखते हुए ये पहला एक शुरुआत है।
हमने 2020 में रखा था शुरुआत प्राइमरी स्कूल के लिए, ये सेकेंडरी स्कूल बनेगा। सिर्फ सर सैयद के लिए नहीं, मैंने अंजुमन मुफीद इस्लाम का भी प्रेसिडेंट हूं, सदर हूं। मैंने अंजुमन 31 नंबर मुफीद इस्लाम लेन में जो बिल्डिंग खस्ता हाल था, 100 साल पुराना अदारा, स्कूल में बच्चियां जाती हैं, दरवाजा टूटा, खिड़की टूटा, चूना गिर रहा है, 6000 बच्चियां पढ़ती हैं। किसी ने ये सोच नहीं रखा। आज देखिए 2020 में हमने उन्हें उसका फाउंडेशन रखा था, आज वो मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर में वो स्कूल हम लोग स्कूल को हैंड ओवर करेंगे, जो कि पेंडेमिक का टाइम थोड़ा स्लो हुआ। उसके बाद साउथ तोपसिया रोड में 10 कट्ठा जमीन थी मुफीदुल इस्लाम के, अंजुमन मुफीदुल इस्लाम, उसमें बाउंड्री वॉल, इलेक्ट्रिक मीटर, हर एक चीज लाया गया, उसमें टीन शेड दिया। इंशाअल्लाह जैसे बच्चों का स्कूल चालू होगा, हम लोग वहां मॉन्टेसरी स्कूल चालू कर रहे हैं। उसके बाद 16 नंबर हाथी बगान, अंजुमन के पास फंड नहीं है, उसका भी इब्तिदा हम लोगों ने 2019 या 20 में किया था। उसमें भी फाउंडेशन से लेके G+2 बन चुका है। टेनेंट थे बॉबी भाई, आप स्कूल बनाना चाहते हैं, हम आप लोगों को भरोसा कर कर जगह देते हैं। उन्होंने शिफ्टिंग करवाया, फाउंडेशन बना, आज उनको दुकानदार को जिनका जितना जगह था उनको हम लोगों ने दिया। ये अंजुमन मुफीद इस्लाम का कारनामा है। सिर्फ लोग सपोर्ट करते हैं तालीम के लिए, बगैर तालीम के बगैर लोग अंधेरे में हैं। ये 16 नंबर हाथी पर, 1 नंबर तो आप देखे हैं 400 बच्चा, जो हमारे मुख्तार भाई 470 बच्चे, और इतना डिमांड है। आप स्कूल जाके देखिए, आपको महसूस होगा कि ये ताती बगान, फूल बगान, हाथी बगान के चौराहे पे एक ऐसा स्कूल बना है कि लोग अपने बच्चे को खुशी खुशी तालीम दे सकते हैं। और ये 5वां स्कूल का फाउंडेशन है। आज से इंशाअल्लाह काम अगर हम लोग करेंगे। हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। इंटाली एकेडमी स्कूल किया, जो बंगाली मीडियम थी, पाठोदा के पास गया था। 5 मिनट में यहाँ संजीव कामोकार भी हैं मौजूद, वो मेरे साथ में थे। मिली कॉलेज के कई मेंबर हमारे साथ में गए थे मिली के मीटिंग करने में। उन्होंने 15 मिनट में उन्होंने सिग्नेचर किया और इंटाली एकेडमी स्कूल को इंग्लिश मीडियम में तब्दील किया। आपसे कहा कि इंटाली एकेडमी स्कूल को हम सेंशन प्लान में डाल रहे हैं। वहां के प्रेसिडेंट अशोक दा है, उनसे मैंने अपील की है कि आप इसको पेपर दीजिए और MP लाइट, MLA लाइट फंड से उस स्कूल को हम लोग बनाएंगे। तो मैं आज यहाँ मौलाना शफीक साहब हैं, जो नाखुदा मस्जिद के इमाम हैं, उनके हाथों से जो है आज स्कूल के वहाँ पर ही हम लोगों का JCP चलेगा, फाउंडेशन रखा जाएगा। वहीं साइड पे ही हम लोग दुआ खानी करेंगे। कारी फजलुर रहमान साहब, जो कि उनका ट्रेन लेट है, उनकी भी आने की बात थी, हमने गाड़ी भेज चुके हैं। यदि मौके पे आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनका वादा है वो जरूर आएंगे। ये नेक काम में बॉबी हम घर नहीं जाएंगे, पहले सियालदा स्टेशन से हम सरसैयद स्कूल के इब्तिदा में जरूर रहेंगे। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मौलाना अल्ताफुर रहमान साहब, जो हमारे पद्दोपोखर के इमाम हैं, नमाज पढ़ाते हैं ईद बकरीद में, और उनकी ख्वाहिश थी जब मैं वहाँ काउंसलर बना हूँ, बॉबी वहाँ एक स्कूल कायम करो यार बाबू, ये करोगे तो बहुत ही सवाब जारिया है। ये हमें अक्सर बोलते थे। सम तबरेज साहब है, जामुनतला के इमाम, मुफ्ती साहब है, मदरसा चला रहे हैं। कई मदरसा
चला रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इस नेक काम में मैं भी उनके साथ शरीक रहूं। वो भी मौजूद हैं, मौलाना नदीम साहब हैं, जो अक्सर अच्छे प्रोग्राम और किसी प्रोग्राम में जुड़े रहते हैं। मिली कॉलेज के हमारे सदर साहब मुश्ताक मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब के ट्रस्टी हैं। निसार साहब हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी हैं। बगल में मोहिबुद्दीन मेरे चचा हैं, भाई हैं। सऊद भाई तो हमारे घर के पीछे ही रहते थे, हमने बचपना से देखा है। परवेज रजा साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं और स्टेट माइनॉरिटीज जनरल वहाँ के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अकरम साहब हैं, मॉडर्न स्पोर्टिंग के ट्रेजरर साहब हैं। हुसैन भाई हैं। और बचपना से हम जिनके घर में गए, फिरदौस साहब के, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, घरेलू रिलेशन हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं। सर सैयद स्कूल के इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल सिमी इब्राहिम। मैं बहुत कम स्कूल जाता हूँ, मुख्तार से ही मेरी रफ्ता होती है। 1-2 बार मैं गया हूँ तो उनसे मुलाकात हुई है। हमारे एरिया जो सर सैयद स्कूल के ट्रस्टी हैं, उनका एक सोच था कि हम लोग मिल के ये प्लानिंग किए थे कि स्कूल पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। पॉलिटिक्स तो अलग जगह है, तालीम एक अलग जगह है। वो आजमगढ़ की रहने वाली हैं, उनका सोच जो था मैं कोशिश करने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ हमारे इमरान भाई हैं, कलम पेपर के एडिटर, एक्स MP। यहाँ जहांगीर भाई हैं, जहांगीर भाई को मैंने बचपना से आइडल मान के मैं चला हूँ। वो सैफी हॉल के प्रिंसिपल थे और हमारे इलाके के काफी लोगों को मदद किया है स्कूल एडमिशन के लिए, किसी काम के लिए। मैं जब भी उनको बोलता था तो हमेशा अक्सर मेरे बात को कभी इनकार नहीं किया। वो भी मौजूद हैं। और सभी साहब हैं जो हाथी बगान और वो मस्जिद के पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और कमरान हमारे मरहले में है और सर सैयद अहमद स्कूल के नाम से यहाँ एक इदारा कायम किया जा रहा है। उसमें हमारे अमीरुद्दीन बॉबी साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है और इनकी मेहनत है, कोशिश है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और इनकी मेहनतों को, कोशिशों को कामयाब करे। इस्लाम हमेशा से इल्म का सरपरस्त रहा है। इस्लाम ने हमेशा इल्म की सरपरस्ती की है और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको कह के आदमी गुजर जाए। इसका बहुत सारा सबूत और शवाहिद मौजूद है। अंदलुस से इल्म का दरिया मुसलमानों ने बहाया, जिसकी वजह से यूरोप और दीगर बर्रे आज़म के लोगों ने फ़ायदा उठाया। आज भी हमारी हज़ारों किताबें जो अंदलुस से चुराई गई थी वो ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में मौजूद है।